बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम द पाई एंड द टार्ट चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। ये चैप्टर एक ड्रामा है जिसमें 4 पात्र हैं। ड्रामा का बैकग्राउंड पेरिस है। जॉन और पिए वैगबॉन्ड्स यानी ट्रैम्प्स हैं जो काफी दिनों से भूखे प्यासे हैं। कैसे वे अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपना पेट भरते हैं, ये इस ह्यूमरस स्टोरी से हम जानेंगे। आओ ड्रामा पढ़ते हैं। The Pie and the Tart. Characters: Pierre, Jean, who are vagabonds; Gautier, a pastry cook; Marion, his wife. The scene is laid outside Gautier's cake shop in Paris. The time is the middle of the 15th century. The act could be played on a curtain staged with one door back center. The only furniture is a bench, right. Jean and Pierre are discovered, the former seated on the bench in an attitude of extreme dejection, the latter pacing up and down, blowing on his fingers. Both must indicate that they are cold and hungry. Jean, regarding Pierre's restless pacing. Must you keep doing that? Pierre, it's this blasted cold. If I stop walking, I shall freeze. I'm dying of hunger and cold. Jean, so am I, but I prefer to die sitting down. Pierre, we make a pretty pair, you and I. Paris should be proud of us. Displaying his rags. There are 23 holes in this tunic. I know, because I counted them this morning. That's only reckoning the ones that let the wind through. No doubt there are others, but let that pass. Jean, the holes in your tunic don't interest me. What I am concerned about is the hollow in my stomach. We must live, and without a meal... Dejection, udasi, disappointment, reckoning, गिनती। सीन है गॉटिये की केक शॉप के बाहर का। 15th सेंचुरी पेरिस। एक दरवाजा है स्टेज के बीचों बीच, पीछे की ओर। एक ओर एक बेंच रखा हुआ है। जॉन और पिए, जो कि वैगबॉन्ड्स हैं, स्टेज पर दिखाई पड़ते हैं। जॉन बेंच पर बैठा है, निराश है, दुखी है। पिए चहलकदमी कर रहा है। वो भी इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। अपनी फ्रोजन उंगलियों को फूंक मार मार के गर्म करने की कोशिश कर रहा है। जॉन पिए की चहलकदमी से परेशान होकर कहता है कि क्या इस तरह चहलकदमी करना जरूरी है? पिए जवाब देता है कि वो शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए घूम रहा है। उसे बहुत ठंड लग रही है और भूख के मारे वो बेहाल है। पिए कहता है उसका हाल भी वैसा ही है, पर मरना ही है तो वो बैठे बैठे मरना पसंद करेगा। पिए सरकास्टिकली कहता है कि पेरिस को हम दोनों पर गर्व होना चाहिए। तुम भी भूखे नंगे हो, मैं भी। मेरे ट्यूनिक में 23 होल्स हैं। आज सुबह ही मैंने उन्हें काउंट किया। और भी कई होंगे। अब ऐसे फटे चिथड़ों में सर्दी से हमारा बचाव कैसे होगा? जॉन कहता है तुम्हारे ट्यूनिक के छेदों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो अपने पेट के अंदर जो ये बड़ा सा छेद है, इसे भरना है। जिंदा रहना है तो भोजन तो चाहिए। आगे पढ़ें। That's what I said to Judge Gaston when I was pinched last month for begging. Said what? He asked me why I did it, and I said, well, Your Honor, I must live. And he looked me up and down and said, I really don't see the necessity.
Hmm, a wag, that judge. He didn't know what it was to be hungry. See here, my pretty. This can't go on. I'm going to knock on every door in this street. And since charity begins at home, I shall begin right here, indicating the cake shop. You'd better not be seen. Go into the next street and try your luck there. Jean begins to go, but Pierre calls him back. Wait a minute, brother. Let's hear what you can do. Jean knocks on the bench and assumes a mendicant voice and attitude. For the love of Saint Agatha and all the blessed saints, have pity on a poor miserable who has had no food for 3 days. How's that? Not bad. But make it 7 days and squint slightly. It's a sure sign of starvation. Exit Jean. Pinched, arrested, wag, comedian, जिसे हंसी मजाक की आदत हो, मेंडिकेंट जो भिक्षा मांगता हो, स्क्विंट भैंगी नजर। पिए कहता है, यही तो मैंने कहा था जब भीख मांगने के जुर्म में मुझे जज के सामने पेश किया गया था। मैंने उससे कहा, टू लिव आई मस्ट ईट। तब उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, इतना भी जरूरी नहीं है तुम्हारा जीवन मैनकाइंड के लिए। जॉन कहता है कि वो जज वाकई मजाकिया है। पिए उसके जवाब में कहता है, उसे क्या पता भूख किसे कहते हैं। खैर, मैं इस सड़क के हर घर पर जाऊंगा। मैं ये सामने वाली केक शॉप से ही शुरुआत करता हूं। तुम अगली सड़क पर जाओ और वहां अपनी किस्मत आजमाओ। जॉन जाने लगता है, पर पिए उसे रोकता है और कहता है, पहले मुझे दिखाओ तुम क्या कहोगे। जॉन भीख मांगने की एक्टिंग करके दिखाता है। पिए उसकी एक्टिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और कहता है कि भीख मांगते हुए बस ये कहना कि मैं 7 दिन से भूखा हूं और अपनी नजरें थोड़ी सी भैंगी कर लेना। आगे बढ़ें। Knocking on the cake shop door. Alms, good sir, for the love of God and all his blessed angels, take pity on a poor traveller who has had no food for a week. M. Gautier comes to the door. He is a man of about 50, well preserved and obviously content with his lot. Go away. I've got nothing for you. My wife is away and I'm busy. You'd better go to the next street. Gautier slams the door. Exit PA right, enter Jean left. He looks at the door, hesitates, and then knocks. For the love of Saint Agatha, Saint Nicholas, Saint Crispin, and all the blessed company of heaven, have pity upon a poor miserable who has had no food for 7 days. The door is opened by Marion. She is younger than her husband, stoutish but comely. Go away, beggar. My husband is out and I have nothing for you. You'd better call again when he comes back. Marion shuts the door. Jean sits disconsolately on the bench. Presently, Gautier comes out of the shop. He makes as if to go out, right, but remembers something and goes back towards the shop. Marion appears at the door. Ah, Marion, I'm just off to dine with the mayor. He keeps none too good a table. I'm thinking that I'd better take that eel pie with me. The big one that I made last Monday? Just get it for me. Hurry, I mustn't be late. Very good, husband. Alms, charity, well preserved, samrid, stoutish, a bit fat, comely, attractive, disconsolate, very unhappy, none too good a table, बहुत अच्छा खाना सर्व नहीं करना। पिए केक शॉप का दरवाजा खटखटाता है।
और गॉटिये से कुछ दान दक्षिणा मांगता है। गॉटिये लगभग 50 साल का है, हट्टा कट्टा है, समृद्ध है। वो पिए को भगा देता है, ये कहकर कि वो बिजी है और उसकी पत्नी घर पर नहीं है। पिए निराश होकर चला जाता है और जॉन केक शॉप के बाहर आकर खड़ा होता है। वो थोड़ा हिचकिचाता है, डरता है, कहीं ये लोग भी मुझे खाली हाथ न लौटा दें। डरते डरते वो दरवाजे पर नॉक करता है। मैरियन, जो कि गॉटिये की पत्नी है, दरवाजा खोलती है। वो थोड़ी सी मोटी है पर दिखने में अट्रैक्टिव है। जॉन उससे भिक्षा मांगता है पर वो भी उसको भगा देती है। बेहद निराश हताश जॉन बेंच पर आकर बैठ जाता है। उसी समय गॉटिये केक शॉप से बाहर आता है, पर शायद उसे कुछ अचानक याद आता है और वो दुकान की तरफ फिर से मुड़ जाता है। वो मैरियन से कहता है कि वो मेयर के घर डिनर के लिए जा रहा है, मगर उनके यहाँ भोजन अच्छा नहीं होता, तो उसने जो ईल पाई बनाई थी उसे वो साथ ले जाएगा। वो मैरियन को पाई लाने के लिए कहता है। आगे पढ़ें। She goes back into the shop, but Gautier calls her back. Wait, I can't very well be seen carrying an eel pie through the streets of Paris. Can I? Not quite the thing for a man of my position. Do you think you could bring it along after me? Quite impossible. I've too much to do to run errands. Why not send someone back for it? A good idea. But who? Well, you'll be bound to meet someone on the way. Yes, but how will you know if he's the right one? Anyone might just come and say they had been sent. I hadn't thought of that. I have it. I'll tell the messenger when I have found him to kiss your hand. That will be the sign, and you'll know that everything is all right. Well, choose a good looking one. Madame Gautier's hand is not for everyone to kiss. Marion returns to the shop. Gautier exits right. Jean, who has overheard all the foregoing, sits pondering. Presently enter Pierre left. Errands, calm, tasks, coyly, shyly, ponder, गहरी सोच। जैसे ही मैरियन पाई लेने अंदर जाती है, गॉटिये उसे वापस बुलाता है। वो उसे कहता है कि मेरी इज्जत और रेपुटेशन का व्यक्ति पाई लेकर पेरिस की सड़कों पर दिखाई देगा तो लोग क्या सोचेंगे? क्या तुम कुछ समय बाद इसे लेकर आ जाओगी? मैरियन कहती है कि उसके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वो किसी मैसेंजर को भिजवा दे तो पाई उसके हाथों भिजवाई जा सकती है। गॉटिये को ये आइडिया ठीक लगता है, पर वो किसे भेजे ये वो मैरियन से पूछता है। मैरियन कहती है, रास्ते में तुम्हें कोई न कोई सही इंसान मिल ही जाएगा। गॉटिये जवाब में कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो ही मैसेंजर है? कोई भी आकर तुम्हें कह सकता है कि उसे मैंने भेजा है। दोनों कुछ देर सोचते हैं और फिर गॉटिये को एक आइडिया आता है। वो मैरियन से कहता है, मैं जो मैसेंजर को भेजूंगा उसे मैं तुम्हारा हाथ किस करने को कहूंगा, तब तुम समझ जाना कि उसे मैंने ही भेजा है। ये आइडिया सुनकर मैरियन खुश हो जाती है और शर्माने का नाटक करते हुए कहती है कि किसी हैंडसम यंग मैन को ही भेजना। मेरा हाथ कोई एरा गैरा किस नहीं कर सकता। ऐसा कहकर मैरियन अंदर चली जाती है और गॉटिये मेयर के घर के लिए रवाना हो जाता है। ये सब जॉन सुन लेता है और गहरी सोच में डूब जाता है। तभी पिए वहां आता है। आगे पढ़ें। Any luck? Yes and no. What does that mean?
Mm, look here, are you ready to do exactly as I tell you? And no questions asked? I'll do anything to keep my stomach quiet. Very well. Now listen. I'm going into the next street. Directly, I'm gone. Go up to the door, knock on it, and say, "Thanks. I've been there once today already. I got what I expected." Mimicking M. Gautier's pompous manner. "Go away, beggar. Go away. I'm busy. Go into the next street. Bah!" Never mind about that. Listen, I say directly I am gone. Go up to the door and knock on it. The lady will come to the door. But, but how do you? Don't interrupt. The lady will come to the door. When she does, so you will take her hand and kiss it. Kiss the lady's hand? I think you're making a slight mistake, brother. I'm not lovesick. I'm starving. Wait, that's not all. When you have kissed her hand, you will say, "Madam, I am sent by M. Gautier to fetch the pie." She will then give you a large eel pie and the heavens will open, roast fowl and nectarines will be seen to rain upon us from the clouds, and champagne will be heard gurgling in the gutters. Where did you learn this conjuring trick? Very well, believe it or not as you like. The point is, are you hungry or are you not? Rubbing his waistline. Hungry? I have a hollow in here that all the birds of the air could nest in. Then do as I tell you. If it doesn't come off, never trust me again. But it will. Mimicking, copying, pompous, arrogant, नेक्टरीन पीच के जैसा एक फल, फाउल चिकन, कॉन्जरिंग जादू। पिए जॉ से पूछता है कि कुछ मिला? जॉ थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर देता है, कुछ मिला भी और नहीं भी। पिए कुछ समझ नहीं पाता तो जॉ उसे कहता है कि मुझसे कुछ पूछे बिना मेरा कहना मानोगे? पिए कहता है कि अपनी भूख शांत करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। जॉ उसे प्लान समझाता है कि मैं दूसरी स्ट्रीट में चला जाऊं तो तुम उस केक शॉप पर जाकर कहना। तभी पिए उसे टोक देता है कि मैं वहां जा चुका हूं और वही हुआ जिसका मुझे अंदाजा था। वो गॉटिए की नकल करते हुए कहता है, "दफा हो जा भिखारी, मैं बिजी हूं।" गॉटिए का रवैया याद करके पिए को गुस्सा आता है। जॉ उसे चुप कराता है कि जो हुआ उसे जाने दो और अब क्या करना है उसे ध्यान से सुनो। जैसे ही मैं यहां से जाऊं, दरवाजा खटखटाना और जब घर की मिस्ट्रेस आए तो कहना। पिए फिर से जॉ को टोकता है कि तुम्हें कैसे पता कि लेडी ही दरवाजा खोलेगी? जॉ कहता है, बीच में मत बोलो, मैं जो कह रहा हूं कि लेडी दरवाजा खोलेगी तो वो ही खोलेगी। जब वो दरवाजा खोले तो तुम उसके हाथ को किस करना। पिए ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो जॉ से कहता है कि मैं प्यार का भूखा नहीं हूं, वाकई भूखा हूं। मुझे भोजन चाहिए, प्यार नहीं। किसी लेडी के हाथ को किस करने से मेरी भूख थोड़ी ना शांत हो जाएगी। जॉ उसे टोकता है कि जब तुम उसके हाथ को किस करोगे तब कहना, मुझे आपके पति ने भेजा है पाई लाने के लिए, वो तुम्हें एक बड़ी सी पाई देगी। पिए ये सुनकर सरकास्टिकली कहता है, हाँ जरूर, फिर स्वर्ग लोक से चिकन और नेक्टरीन्स की बारिश होगी और नालियों में गंदे पानी की जगह शैंपेन की नदियां बहती नजर आएंगी। जॉ कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। जॉ उसे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। यदि पिए को भूख लगी है तो जैसा वो कह रहा है पिए वैसा ही करे। पिए कहता है, मेरे पेट में इतना खालीपन है कि हवा में उड़ती सभी चिड़ियां
वहां आराम से बैठ सकती हैं। वो खुशी खुशी प्लान फॉलो करने के लिए राजी हो जाता है। आगे पढ़ें। Criminy, Jean, I believe you're serious. Of course I'm serious. All right, I'll do it. Good. Tell me again, what do I have to do? It's all quite simple. Go up and knock at the door and say, Please, Madame, M. Gautier has sent me for the eel pie. She won't give it to you till you have kissed her hand. That's important. But suppose the husband comes to the door. He won't. He's out. I happen to know it. Never mind how, but I do. Now, I'm going round the corner. I shall be back in 5 minutes. And don't you start dinner till I come. Exit Jean right. Pierre knocks on the door. Marion answers it. Good morning, lady. I have come from M. Pie, who sends me to fetch Gautier. I should say I have come from M. Gautier, who sends me to fetch the pie, the eel pie. And how am I to know you are his messenger? Ah, allow me, lady, to kiss your hand. He attempts to seize her hand, but Marion snatches it away. Criminy एक swear word है. Seize, take by force. पिए सोच रहा था कि जॉन मजाक कर रहा है, पर उसका सीरियस एटीट्यूड देखकर वो शॉक हो जाता है। जब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि जॉन सीरियस है, तब वो उसका प्लान फॉलो करने का डिसीजन लेता है। जॉन उसे प्लान समझाता है कि उसे दरवाजे पर जाकर घर की मालकिन से कहना है कि मुझे आपके पति ने भेजा है ईल पाई लाने के लिए। ये कहने के बाद उसे मैरियो के हाथ को किस करना है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो उसके हाथ को किस नहीं करेगा तो मैरियो उसे पाई नहीं देगी। पीए ने अपना डाउट जाहिर किया, यदि उसका पति आ गया तो क्या करेंगे। जॉन उसे आश्वासन देता है कि उसका पति नहीं आएगा, वो बाहर गया हुआ है। वो फिर उससे कहता है, अब मैं यहां से निकलता हूं, पर मैं 5 मिनट के बाद वापस आ जाऊंगा। मेरे आने तक पाई मत खाना। पीए प्लान के मुताबिक केक शॉप पर जाकर मैरियो से बात करता है। नर्वसनेस के कारण वो रटा हुआ डायलॉग गड़बड़ गड़बड़ बोल देता है, पर फिर वो एकदम संभल जाता है और प्लान के मुताबिक मैरियो के हाथ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मैरियो झट से अपना हाथ खींच लेती है। आगे पढ़ें। All right, that will do. Wait there and I will get it. Exit and reappears with pie. Here it is. Take care how you carry it. It's a very good pie. Rest assured, lady, I shall take the greatest care of it. As a carrier of eel pies, I claim to be second to none in all Paris. It shall travel thus, close to my bosom, as a mother with her bantlings, as a shepherd with his ewes, as Saint Ursula with her maidens, so will I play the guardian angel with this pie. It shall... Be off then, and don't waste time in getting there. She closes the door. After she had gone, Pierre stands holding the pie as if stupefied. He then places it carefully on the bench and sits beside it. He gazes at it lovingly, prodding it now and then with his fingers. This must be a dream, and presently I shall wake. One of those dreams that are too good to last. I know, because I've had them once or twice before. Picking up the pie tenderly and sniffing it. Good dream. Last a little longer. Just now I haven't the very least desire to wake up. Enter Jean. Bosom, छाती, bantling, छोटा बच्चा, ewes, भेड़ें,
मेडन, यंग गर्ल्स, स्टूपेफाइड, स्तब्ध रह जाना, प्रॉडिंग, टचिंग एंड पोकिंग, टेंडरली, प्यार से, कोमलता से। मैरियो पिए को टोकते हुए कहती है, ठीक है, किस करने की जरूरत नहीं है। मैं मान गई, तुम्हें वाकई मेरे हस्बैंड ने ही भेजा है। मैं पाई लेकर आती हूँ। पिए को पाई देते हुए वो कहती है, इसे ध्यान से लेकर जाना, ये बहुत ही बढ़िया पाई है। पिए उसे आश्वासन देता है कि वो पाई को अपनी छाती से लगाकर रखेगा, ऐसे उसका ख्याल रखेगा जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती है। वो पेरिस का बेस्ट पाई कैरियर है। मैरियो उसकी बातों पर भरोसा करती है और पाई उसके साथ विदा कर देती है। मैरियो के जाने के बाद पिए कुछ समय वहां स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये जादू कैसे हुआ। इतने दिनों तक एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं हुआ था और आज ये शानदार दावत खाने को मिल रही है। उसे लगा कि वो शायद एक सपना देख रहा है। जाने कितने दिनों से वो ऐसे ही सपने देख रहा था। वो कहता है, ये सपना कितना सुंदर है, मैं तो इसे देखते ही रहना चाहता हूं। इस सपने से जागने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। यहां पूरा होता है द पाई एंड द टार्ट का पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।